Good evening, everyone. So I think it's a last class for the topic work power energy. On the basis of syllabus, just a simple part is left, that is the power, and then we see some numerical related to the power, and then we see some very good questions. We discuss some very good quality of question. I think you all enjoyed this class. First of all, how you define power? Anyone please tell me how you define power? Anyone? Change in energy with respect to time. Means work done per unit time. Yeah, rate of doing work is called power. Okay, so if rate of doing work is called power, so power is defined as dw by dt, or if you want to write it in simplest form, so del w by del t, it's w not omega, limit time tends to 0, and from that we can say dw by dt. So SI unit is joule per second, which we can say watt. किसी का लगाना मत, ठीक है, बोलता है ना वाट लगा दूंगा, so watt मत लगाना, ठीक है. So the SI unit is watt. Is it okay for everyone? Acha, if you want to write the dimension, so ml square t minus 2 by t, which is ml square t minus 3. After that, yes, it is a scalar quantity. That is a very important thing. It is a scalar quantity, and if you want, you can write some unit like 1 horsepower. I think you all know this from class 9. 1 horsepower is 746 watt. Huh? Yes, 746 746 watt. 1 horsepower is 746 watt. Next important thing is that we all know dw, that is force dot dr. So as dw is force dot dr, so power, that is dw by dt, which we can write f dot dr by dt, which is f dr by dt. Displacement with respect to time is velocity. So you can say power is the dot product of two vector. One is force, another one is velocity. Is it clear, everyone? Yes, sir. So that means I can give this question in your vector also. I can give you force, I can give you velocity, and I can ask you what is the power. So very simple. You have to do the dot product of them, and the amount you get, that is in watt. Is it clear? Yes, so ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा किया है कि आई गिव यू सो मच वैल्यूज ऑफ फोर्स. जैसे एग्जाम में भी तुम्हारा एक डिस्टेंस और ओमेगा, मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन दिया था. शायद तुम लोगों को याद होगा, जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, मैंने लिखाया था v इज आर ओमेगा, और उसके बाद मैंने बोला था इसको वेक्टर फॉर्म में v इज आर प्लस ओमेगा ऐसे लिखा जाता है. सिमिलरली एसिलरेशन इज आर अल्फा, तो एसिलरेशन को भी r क्रॉस अल्फा ऐसे लिखा जाता है. तो ये जो मैंने बोला था, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो यू हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट. इसी कारण से मैंने ये क्वेश्चन दिया था. मैं अभी तक आंसर चेक नहीं किया. मुझे जो क्वेश्चन अच्छा लगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडमली दे दिया था. इवन मैं ठीक से आंसर भी चेक नहीं किया. कुछ जो मैं खुद से दिया था उसका मैंने आंसर निकाल लिया था. So similarly, they can easily give you a and b two vector, and they ask you find the dot product of two vectors. Simply the dot product, you get the value, you write that is in watt. Clear, everyone?
तो मुझे इसके ऊपर, मैं ये आशा रखता हूँ कि मुझे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देने का जरूरत नहीं है। यस सर। अच्छा, जब भी पावर का बात आता है, एक छोटा सा चीज यूज होता है, हालांकि तुम लोग को ये सब के ऊपर क्वेश्चंस नहीं देगा बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू क्लास 12 थिंग। फिर भी जब पावर का बात आता है तो मैंने देखा बुक में क्वेश्चन भी दिया है, तो इसलिए आई वांट टू डिस्कस दिस आल्सो। स्पेशली तुम अगर ट्रांसफार्मर देखोगे, तुम लोगों का घर के सबके आसपास ट्रांसफार्मर होता है, घर पे भी ट्रांसफार्मर लगता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। एक एनर्जी से, एक ही सेम एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ही करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि तुम बाय चेंजिंग द टर्न मींस वाइंडिंग, तो दो तरह का वाइंडिंग होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यू कैन चेंज द वोल्टेज एंड यू कैन चेंज द करंट, इसलिए इसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और हर एक ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता है। तो जब भी एनर्जी लॉस होता है तो स्पेशली ट्रांसफार्मर में काफी ज्यादा एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है, स्पेशली पावर का एफिशिएंसी के ऊपर। तो कुछ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट लॉस होता है, और हमें मालूम है एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो वहां पे पावर का रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो एग्जामिनर कहीं पे भी तुमको पावर रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकता है, तो वहां पे एफिशिएंसी ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है ईटा, ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड ईटा। इस एफिशिएंसी का जो है क्या होता है, पावर, अगर हम पावर का एफिशिएंसी बोलेंगे, जनरली किसी भी चीज का तुम एफिशिएंसी निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं आई एम इन द टॉपिक ऑफ पावर, सो मैं पावर का एफिशिएंसी दिखाना चाहता हूं, और जितना 11-12 के रिलेटेड है उसमें पावर का ही एफिशिएंसी सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। सो एफिशिएंसी ऑफ द पावर, और पावर का एफिशिएंसी जो होता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से समझाता हूं कि ये क्या मतलब हुआ। जैसे मानो एक स्मॉल टाउन है, इसका मानो डिमांड है 800 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का, और तुम जो ट्रांसफार्मर या ग्रिड या सब स्टेशन प्लांट से तुम जो सप्लाई किया, मानो इस बीच में यहां से यहां आने के लिए मानो 200 किलोवाट का लॉस हुआ, तो इसको कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 1000। तो अगर तुम्हें बोलेगा ये जो स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन में पावर देने देगा जो, इसका एफिशिएंसी कितना है, मतलब तुम कितना सप्लाई कर रहे हो और कितना यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आउटपुट मेरा क्या है और मेरा इनपुट क्या है, दोनों का परसेंटेज इज द एफिशिएंसी। तो मैं वेरी सिंपल 800 किलोवाट बाई 1000 किलोवाट into 100 is the percentage, so you can understand it's 80%। so मेरा 80% जो है एफिशिएंसी यूज हो रहा है, बाकी मेरा लॉस हो रहा है। तो ये जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी तुम लोग एक और जगह पे देखोगे, हाँ, दैट इज इन थर्मोडायनामिक्स। काफी सुंदर चैप्टर है, माने इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। मतलब दुख की बात है, इस साल कोरोना के कारण कुछ सिलेबस हटा दिया है, तो स्कूल ये सब को एकदम नेग्लेक्ट करेगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स, आहा, इतना सुंदर चैप्टर है कि क्या बताए। एंड यू जस्ट इमेजिन ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, तुम्हारा इंजन का फॉर्म होता है, मतलब जो तुम इंजन बनाते हो, इस इंजन का या रेफ्रिजरेटर का जो बेसिक आइडिया है, मतलब जहां से ये इंजन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जहां से ये रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। और इसमें इंजन का क्या होता है, जैसे डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा टाइप का इंजन होता है, कोयला का थर्मल इंजन होता है। तो
हर एक का अलग अलग एफिशिएंसी होता है। हाँ, तो ये जो एफिशिएंसी है जनरली 55 to 60% इज मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। इसमें बहुत सारा है, कार नोट साइकिल वगैरह बहुत कुछ है, वहां पे भी एफिशिएंसी होगा, लेकिन वहां पे पावर के फॉर्मेट में नहीं होगा, एनर्जी के फॉर्मेट में होगा। तो एनर्जी यूटिलाइज एनर्जी सप्लाई इनटू 100 इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? एफिशिएंसी का मतलब है जो आउटपुट है, आउटपुट में क्या लग रहा है और हम सप्लाई क्या कर रहा है इनटू 100। अगर वो एनर्जी का एफिशिएंसी है तो एनर्जी में करेंगे, पावर का एफिशिएंसी है तो पावर में करेंगे, फोर्स का एफिशिएंसी है तो फोर्स में करेंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. तो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी इतना तक मेरा थ्योरी है। अब मैं सबसे पहले इस पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चन करता हूं और फिर मैं तुम लोगों को कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस देता हूं। आई थिंक यू ऑल एंजॉय, लेट्स सी। तो पहले मैं एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन, दिस आर वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फ्रॉम योर this two are very very popular question from your NCERT book। मैं सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन देना चाहता हूं पावर का, ठीक है? देखो यहाँ पे, अच्छा, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 मेरा शीट का और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.9, ठीक है? मैं पहले क्वेश्चन बता रहा हूं, देन आई गिव यू सम टाइम एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन ट्राई इट। A body initially at rest, ठीक है? It undergoes one dimensional motion with constant acceleration. So acceleration is constant. The power delivered to it at a time t is proportional to, the power delivered to it at a time t is proportional to, means you have to find out the power। ये x का वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1/2, ऑप्शन सी 3/2, ऑप्शन डी -3/2। So I give you 2 minutes for that. You can tell me what is that? Sorry, the options are 1/2, इसका पावर -2 नहीं है, इसको मैं थोड़ा रुक भी गया था, 3/2 एंड स्क्वायर, ये है क्वेश्चन का आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A body initially at rest, it undergoes one-dimensional motion at constant acceleration. So सबसे पहले v equals to u plus at, तो u is 0 plus at, so v equals to at, और यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि your acceleration is constant. Is it clear? Yes, sir. और हमें ये भी मालूम है फोर्स, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो मास भी कांस्टेंट है, तो मेरा फोर्स भी कांस्टेंट है। और फोर्स एंड वेलोसिटी, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही वेलोसिटी हो रहा है, सो दे मेक्स एन एंगल 0 डिग्री। एज दे मेक्स एन एंगल 0 डिग्री, सो पावर इज f dot v, that is fv cos 0 degree, that is mass into acceleration into at, that is m a square t, so power is directly proportional to t, so option is B. Is it clear? Yes, sir. Everyone, you understand that question? Yes, sir. So now the second question is, this one is the first question. These two are very popular question from NCERT book because these are objective question, तो टीचर को कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके दे देगा। सो मैक्सिमम चांस ये क्वेश्चन तुम्हारा जो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है
तो ये सब क्वेश्चन देने का मैक्सिमम चांस है, मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ही, तो आई गिव यू द 50% प्रोबेबिलिटी, दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ही। अच्छा, जो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग unidirectionally under the influence of a source of constant power। अब देखो ये क्वेश्चन में बोल दिया है पावर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एस एंड टी, you have to find out the relation between S and T। क्यों, क्या बोला है कि its displacement in time T is proportional to, ऑप्शन फिर से वही है, T is कितना था 1/2 T, ऑप्शन C T is 3/2, ऑप्शन D T is square। तो दोनों का ऑप्शन सेम ही दिया था। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, हमें ये मालूम है पावर जो होता है वर्क डन बाय टाइम होता है, तो वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम, जहां पे याद रखना माय पावर इज कांस्टेंट एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इज इट क्लियर? यस सर। सो वर्क डन पावर इनटू टाइम, इसके लिए ये मूव किया, सो कैन वी राइट इट काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर, बिकॉज वर्क डन इज द kinetic energy as the particle is in motion। Yes sir। So from this v square is 2 pt by m, so v is root under 2p by m into t, जहां पे देखो p भी कांस्टेंट है, मास तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट है मैकेनिक्स में, सो ये मेरा क्या हो गया, रूट अंडर 2p by m, the whole is constant, the whole is constant into t to the power 1/2। Are you satisfied with my word? Yes sir। अब देखो मुझे वेलोसिटी और t का बीच में रिलेशन मिला है, और मुझे इस वेलोसिटी एंड t का रिलेशन से, मुझे इस वेलोसिटी एंड t का रिलेशन से डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन चाहिए। मतलब मुझे मेरा अंतरात्मा बोल रहा है, मेरा अंतरात्मा बोल रहा है क्या करो, हाँ सर dx by dt। एनीवन? हेलो, सर dx by dt को इंटीग्रेट करो। वेरी गुड, वेरी गुड। किसका ये ऑन है? अच्छा, किसी का नहीं है, ठीक है। तो मेरा अंतरात्मा बोल रहा है एस, एक्स या एस बोला है तो ds by dt। वेरी गुड। के बोलो, वो भी रूप ना, अरे के बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ds is 2p by m, you take the constant t to the power half dt, और now we can use ds, the whole is constant, constant को बाहर फेंको, 2p by m बाहर में जाए constant 1/2 dt, so s 2p by m, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, 3/2 by 3/2, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो s is directly proportional to, because rest all are this, all are the constant, t to the power 3/2। Are you getting my point? Is it clear? Yes sir। So this is the best question from your NCERT book related to power. This is the best question। ठीक है? है सर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन को क्या बोला है, हाँ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द NCERT, दिस क्वेश्चन वंस आस्क्ड इन IIT। देखो क्या लेवल का क्वेश्चन पूछता है, क्या लेवल है देखो।
क्वेश्चन इज a wind power generator converts wind energy into electrical energy. Very good. A wind power generator converts wind energy into electrical energy. Assume that the generator converts a fixed friction of the wind energy intercepted by its blade into electrical energy. For wind speed V is the wind speed. For wind speed V, the electrical power output will be option A V, option B V square, option C V cube, option D V4. बोलो क्या होगा? देखो, जब भी हम लोग ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात कर रहे हैं, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. इज इट ओके? Yes, sir. और यहाँ पे ये जो टरबाइन में जो विंड एनर्जी जाएगा, जाके टरबाइन का ब्लेड को घुमाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, फोर्स applied on the blade or force generated by the wind, that is velocity, because the wind speed is fixed, and dm by dt. समझ में आया मैं ये इक्वेशन कहां से चुराया? कहां से बोलो? ওই যে স্যার জল ছুটতেছিল তার তোমার পাইপ থেকে। हाँ, ये मतलब ये फॉर्मूला फोर्सेस ये कहां से मुझे मिला? मैंने सर कहीं मास पे बताया? वेरिएबल। हाँ, मतलब मैंने जब न्यूटन सेकेंड लॉ को डिराइव किया था, याद करके देखो, मैंने दिखाया था फोर्स इज dp by dt, p is mv, keeping m constant we can differentiate v, keeping v constant we can differentiate p m. So keeping v constant we can differentiate m. Is it okay? Yes. Is it okay? अब देखो इसमें जो अगर मैं डेंसिटी ऑफ विंड को मैं रो ले लूं, तो ये जो dm है, तो ये जो एयर जाएगा, ये एयर का जो मास है, मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा कि नहीं, बोलो? सो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डोंट कंफ्यूज, दिस वन इज वॉल्यूम एंड दिस इज द स्पीड. अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या है? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फॉर ए पर्टिकुलर टाइम ये इतना ही पोजीशन आगे बढ़ेगा. विंड ऐसे ऐसे जा रहा है एक पर्टिकुलर पोर्शन से, उसका एक एरिया है और कितना जा रहा है एट ए टाइम. तो v इज एरिया इनटू dx. अगर मैं वेरी स्मॉल पोर्शन लिया, मतलब हाउ कैन वी राइट दिस? v रो v dt, तो रो तो कांस्टेंट है, तो dv by dt, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब इसका क्या हो गया? रो d एरिया इंटू x by dt, मतलब velocity रो एरिया dx by dt. Are you getting my point? So displacement with respect to time क्या हो गया? velocity. तो velocity रो एरिया इंटू velocity, तो रो एरिया वेलोसिटी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा फोर्स का वैल्यू. तो अब देखो फोर्स का वैल्यू क्या है? रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, सो रो ए वी क्यूब. सो प्रेशर जो है, पावर जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब. देखो कहाँ पे क्वेश्चन ना वो डेंसिटी के बारे में बोला है, ना वो एरिया के बारे में बोला है, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा जब ये विंड ब्लो करेगा तो कैसे ब्लो करेगा. इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, मतलब इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, और ये विंड धीरे धीरे जा रहा है. सो ये इसका थिकनेस है. इस पर्टिकुलर पोर्शन से मेरा कितना विंड फ्लो किया, दैट इज m. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एयर रिमेन सेम, इसको बाहर कर दिया dv by dt. अब वॉल्यूम में क्या है? एरिया इंटू डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है अगर हम x ले, तो इसका dx by dt, तो dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी.
सो रो ए वी स्क्वायर, ये मेरा फोर्स जनरेट हो गया। तो इसे दो क्वेश्चन दे सकते हैं, एक तो फोर्स जनरेट कितना हुआ, एक पावर जनरेट कितना हुआ। समझ में आया? স্যার এই ডিএক্স এর ব্যাপারটা ভাবো কি করে? এই জন্য তবেই তো তুমি আইআইটির পরীক্ষা দেবে বাবু। আর একটা কোশ্চেন ছিল না, এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর এল স্কোয়ার ছিল, এলটা কনস্ট্যান্ট থাকে তো জিরো হয়ে যায় ডিফারেন্সিয়েট করলে, হ্যাঁ ওগুলা ভাবো কি করে? ভাবতে হবে বাবু, একটু দিমাগ তো লাগাতেই হবে, আর ওটা প্র্যাকটিস করতে করতে এগুলো হবে। সব তো আর এরকম কোশ্চেন থাকে না, কিছু কিছু কোশ্चेन থাকে। सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? चलो अब मैं, चलो ये तो टफ क्वेश्चन हो गया, अब तुम बोलोगे इतना सोचेंगे कहाँ से, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाया कि कितना खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं तुम लोगों को छोटा छोटा क्वेश्चन देता हूँ और देखता हूँ कि तुम लोगों का क्या आंसर आता है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, तुम लोगों को मैं स्प्रिंग काफी अच्छे से पढ़ाया हूँ, है ना? याद है ना? तो सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, whose spring constant is k and length is l. Okay, now I cut the spring in 3 equal part and then connect in parallel. Are you getting my point? स्प्रिंग को 3 टुकड़ा करके तीनों को पैरेलल लगाया। Is it clear? Yes, sir. So what is the equivalent spring constant? Tell me, what is the equivalent spring constant? Anyone? हाँ 3/2 के सब भूले गली। फर्स्ट देखो, मैंने फर्स्ट बोला था कि k is inversely proportional to l बोला था। है So if I cut it in 3 equal part, so what is the spring constant of each? 1/3 के। हाँ 1/3 इनवर्स है तो 3 टाइम्स हुआ तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। ओह हाँ सही। कितना होगा? 3k 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 3k। Now in parallel we add them, so 3k 3k 3k, so what is the answer? 9k। है कि नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन बोलो। और ये क्वेश्चन मेरा नहीं, ये 6-7 साल पहले एक बार नीट में आया था। उस समय नीट तो नहीं था, उस समय AIPMT बोल के एग्जाम होता था, AIPMT में आया था। सो यू अंडरस्टैंड हाउ गुड दिस क्वेश्चंस आर। क्लियर हुआ? चलो अब मैं तुम्हें और कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कराता हूँ। यस चलो शीटटाও দিতে হবে তোদেরকে, দেওয়া হয়নি क्वेश्चन नंबर। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. A chain of mass m is placed on a smooth table. A chain of mass m, and suppose the length is L, is placed on a smooth table with 1/3 of its length hanged over the edge. तो ये एक टेबल है, इस टेबल में एक चेन है, चेन का 1/3 जो है हैंग कर रहा है। ठीक है। Work done in pulling the chain back to the surface of the chain table is, work done in pulling the chain back to the surface of the table is, option A mgl/3, option B mgl/2,
L by 6, option C. mg L by 9, option D. mg L by 18. Tell me the answer. mg L by 18. হ্যাঁ, তুমি তো জানি এই কোশ্চেনটা আমি আগে একবার করেছিলাম। রেস, টেল মি দ্য আনসার। যারা আগে ক্লাস করিসনি তারা স্পেশালি। সৌভিক, ও সৌভিক, সৌভিক কিছুই বলে না, দেখছিস ক্লাস করতেছে না, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ভগবান জানে। সৌভিক, তুমি কোথায়? এতক্ষণ পরে রিপ্লাই দিচ্ছ। পাশে দাদাভাই দেখছিল তো বন্ধ তো। আচ্ছা, দাদা ভাই কেমন আছে? ভালো। শিলিগুড়িতে? হুম। দাদা ভাইকে বলো একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে, কতদিন দেখা দেখা হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো টেল মি হোয়াট ইজ দ্য আনসার। देखो, you can solve it in two way. One is the work power energy form, means work done form. Another one is the center of mass, which you don't know because my next topic is next chapter is center of mass. तो मैं यहाँ पे थोड़ा उसका hint दे दूंगा कि if you use the center of mass, how easily you can solve this question. But अगर मैं इसको work power energy में work done के process में बनाऊं तो देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पार्ट को पहले लिखना पड़ेगा। इस छोटा सा पार्ट को मैं ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो लेट द फॉर दैट स्मॉल पार्ट whose mass is dm, which is at a distance x from this surface, so मुझे वर्क डन कितना पड़ेगा करना पड़ेगा, dm gx. is it clear? Mass of that छोटा सा chain is dm, g is the gravitational acceleration, and x is the distance of that chain, that small part of the chain from the table. अब इसको बोला जाता है, actually you can distinguish, you can distribute mass in three way. One is called the linear form, another one is called the surface form, third one is called the volumetric form. जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे चेन का क्या दिया है, लेंथ, तो हम लेंथ वाइज लेंगे। कभी कभी तुम्हें एक रेक्टेंगल दे सकता है या सर्कल दे सकता है, तो तब मुझे एरिया वाइज चाहिए तो हम लोग एरिया वाइज करेंगे। कभी कभी तुम्हें क्यूब दे सकता है, स्फीयर दे सकता है, तो इन दैट केस यू नीड द मास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा तो मास को तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे इस डीएम का मास चाहिए। इसका मानो जो थिकनेस है वो है dx, ये मेरा टेबल का रोडवा है dm। तो टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितना है l, तो क्या हो गया मास पर यूनिट लेंथ। तो तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कितना है dx। इज इट क्लियर? Yes, sir. If we put it here, so what we have, mass per unit length dx, ये हो गया dm के मास gx, तो क्या हो गया mass per unit length gx dx. Now we have to take the integration to find out the total work done, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। So for total work done, taking integration both side, तो हम क्या करेंगे, dw that is equals to m by l g इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब ये x dx कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, सो 0 to l by 3 is 0 to w total work done। इज इट क्लियर? हैंगिंग पार्ट को ही उठाना है ना,
So my limit is 0 to L by 3. Is it clear, everyone? Yes, sir. So W M by L G ये क्या हो गया x square by 2 0 to L by 3. तो क्या हो गया mg by L, you can remove 2 also, L by 3 square minus 0, that is mg 2L L square by 9 minus 0. So 0 को लिखने का जरूरत नहीं है. तो हो गया कितना एम जी एल स्क्वायर बाई 18L, एल कट जाएगा 1/18 एम जी एल. क्लियर? यस सर. अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेंटर ऑफ मास से करता, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास का मतलब है जहां पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. इसके लिए काफी सुंदर कुछ फॉर्मूला है, काफी सुंदर कुछ वे है जिससे तुम निकाल सकते हो. हम वैसा कुछ नहीं भी करके सीधा देख सकते हैं. ये जो हैंगिंग पार्ट है, देखो टोटल इस रिंग का मास है m. तो हम अगर लॉजिक लगाएगा ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास कितना है? m/3. सो वाकडन में हम लिखेगा टोटल मास m/3 g. और ये जो हैंगिंग पार्ट है अगर लेंथ l है, सेंटर इसका कहां पे होगा? मिडिल में. यस सर. तो मिडिल मतलब क्या हो गया? l/3 का मिडिल कितना होता है? 12/6. तो यू अंडरस्टैंड. तुम्हारा पास अगर बुद्धि है तो तुम यहां से लेके यहां तक को कैसे कर सकते हो देखो. तो यू अंडरस्टैंड? हेलो? না স্যার, এই ক্যালকুলাস ওয়েটা কি করে পড়ো? হ্যাঁ, এই ক্যালকুলাসের ভাবেটা কি করে পড়বো? এই যে एक छोटा सा পড়লে पार्ट তো का लिया. না, So তুমি we can এক্স take the, ডিসটেন্স কেন যাও? মানে আমি তো ডাইরেক্ট নিতে আরে চাই না, আমি খালি তো ডিএম কাটবো। দেখ দেখ এখান থেকে এখান পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গার জন্য x আলাদা আলাদা. তো হ্যাঁ, এক্স আলাদা আলাদা। তো x is variable. হ্যাঁ তো dx করে চেঞ্জ হচ্ছে. So you have to take the integration. হ্যাঁ। ফার্স্ট থিং, এখান থেকে এখানে প্রত্যেক জায়গায় মাসও তো আলাদা, যত উপরে যাচ্ছিস মাস বাড়ছে তো. হুম। So that means that m is dm. You take a small part and then you integrate. That's why integration is the process where you adding a small part, small and you স্যার get a তুমি big এখানে part. ডিএম কে এক্স এর হিসেবে লিখলে রেসপেক্টে, আর যদি আমি এক্স কে ডিএম এর রেসপেক্টে লিখতে যেতাম? আমি কোথায় লিখেছি? আমি ডিসটেন্সটা x নিয়েছি, এর 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 থিকনেস কত? dx. হ্যাঁ। As we write x we write dx, if we write y we write dy, if we write a না না, dl. তুমি ডিএম টাকে চেঞ্জ করলা না এক্স এর হিসেবে, হ্যাঁ, তো আমি এক্স কে ডিএম এর হিসেবে চেঞ্জ করতে পারবো? আরে বাবা আমার মাসটাকে তো মাসেই আনতে হবে না? হ্যাঁ, মাসটাকে মাসে ইউনিট আনলাম। এন্ড ডাইমেনশন কি বলছে? মাসের জন্য আমার মাসই লাগবে না? ও, এটা মাস, তো টোটাল মাস পার ইউনিট লেন্থ ইনটু লেন্থ কেটে গেল, মাসেই থাকলো না? বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। আর এটা তো ডিএক্স না, এটা তো ভ্যারিয়েবল, প্রত্যেকটা জায়গার আলাদা আলাদা. এটা তো ছোট না, এখান থেকে এটা নট নেসেসারি ছোট. এটা 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 তো এমনও হতে পারে দ্য লেন্থ ইজ 100 মিটার. তো 100 মিটারের 1/3 মানে 30 মিটার. হাউ ইউ সে দ্যাট লেন্থ ইজ স্মল লেন্থ? নট নেসেসারি না. বাট দ্যাট ছোট একটা মাস, ওটা ছোটই হবে. একটা মনে কর অ্যাটম অফ দ্য মাস, তো যত বড়ই মেটেরিয়াল হোক, অ্যাটম অফ দ্য মাস ইজ অলওয়েজ আ স্মল পার্ট. গেটিং মাই পয়েন্ট? হ্যাঁ স্যার। So now you all imagine Diya দিয়া কোথায় পালালো? পালাই গেছে. আচ্ছা, মধুরিমা গায়েব.
কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, in the previous problem find the kinetic energy of the chain as it completely slip off from the table। अब यही चेन को उठाने के बजाय, यही चेन को उठाने के बजाय अगर हम गिरा दे तो जब ये पूरा चेन नीचे आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सब कुछ वर्क डन ही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, जस्ट तुम्हें यहां से यहां तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट ओके और नॉट? टेल मी। है सर। तो यहां से जो यहां तक करोगे तो आई जस्ट चेंज द लिमिट फ्रॉम, ये कहां पे है L/3 और ये कहां है L, ये 0 से स्टार्ट है। इज इट क्लियर? So I just change the limit L/3 to L, L/3 to L, L/3 to L। तो टू को भी बाहर ले लिया, L² माइनस L/3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा mg/2L, L² माइनस L²/9, that is mg/2L, तो 8/9 L², मतलब 4/9, दो कट जाएगा, 4/9 mgl। इज इट क्लियर? यस सर। अब तुम बोलोगे सर इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास से करते तो क्या करते सर? इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास में करते तो क्या करते सर? तो देखो, अगर मैं इस चेन को पूरा गिरा देता, इसका सेंटर कहां पे है? L/2 मिडिल पे। तो इसका लेंथ कितना है? पूरा चेन का मास कितना है? पूरा चेन m। तो वर्क डन 1 कितना होना चाहिए? mgl/2 होना चाहिए ना, अगर पूरा गिरता। हाँ। और ये ऑलरेडी गिरा हुआ है ना? यस सर। सो डिफरेंस इज द काइनेटिक एनर्जी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो डिफरेंस करो, mgl/2 माइनस mgl/18 क्या हो गया? mgl/2 1 minus 1/9, mgl/2 8/9, 4/9 mgl। So you understand, if you know how to solve, you can solve it easily। Is it clear? यस सर। तो अच्छा, इसके बाद इसका एक और पार्ट है, छोटा सा पार्ट, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसमें बोला है क्या कि in the previous problem if mu is the coefficient of friction between the table and the chain, then find the work done by the friction during the period of the chain slip off from the table। Are you getting my point? ये जब गिरेगा तो यहां पे क्या होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कि नहीं बोलो? तो फ्रिक्शनल फोर्स भी वेरिएबल होगा, क्योंकि पहले मास ज्यादा था, जैसे जैसे मास कम रहा है मतलब नॉर्मल रिएक्शन घट रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो वेरिएबल, तो यू कैन अगेन डू द सेम थिंग, सब कुछ सेम रहेगा। सेंटर मास लग दे नहीं, सेंटर ऑफ मास से भी तुम कर सकते हो, लेकिन हम यही वाला प्रोसेस से दिखा रहे हैं। तो अगर मैं इसको फोर्स इंटू dx करूं, ठीक है, y dx,
क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के साथ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और चेन थोड़ा 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 करके सरक रहा है ना। सर। तो अगर मैं इस पूरा पार्ट का, या एक काम करो, हम पहले एक छोटा सा पार्ट ले लेता है जिसका मास है dm, जो कि इसका डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। तो अगर मैं इतना का, तुम इसको करने के लिए क्या करोगे, मुझे चाहिए फोर्स, और मानो मानते हैं कि ये मानो x डिस्टेंस पे है और इस छोटा इतना का जाएगा, तो टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितना है l, और जितना का तुमने लिया कि टेबल के ऊपर है, ये तो मुझे बाद में एग्जैक्ट पता चलेगा क्योंकि इट्स अ वेरिएबल, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। सो मानो कोई भी एक इंस्टेंट पे x है, ठीक है, तो फोर्स मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस, you get the mass of that portion on the table that particular instant into g, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया into म्यू, क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। यू अंडरस्टैंड? यस सर। मानो मैंने मान लिया ये x है कोई भी एक इंस्टेंट पे, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू x, ये तुम्हारा मास ऑन द टेबल हो गया इनटू g, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया इनटू म्यू, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, और dx क्योंकि ये धीरे 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 थोड़ा 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 करके सरक रहा है। तो इसी को मैं अगर लूंगा तो देखो m/l सेम ही है, खाली यहाँ पे म्यू एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मैंने म्यू एक एक्स्ट्रा ला दिया। और ये कहां से कहां सरक रहा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब जो टेबल पे है। तो अगर मैं यहां से यहां तक देखूं जो टेबल पे है, ये मेरा l/3 से नहीं शुरू होगा, ये मेरा जितना पार्ट टेबल पे है, तो मेरा टेबल पे कितना है 0 to l/3, इज इट क्लियर? समझा मेरा बात? मुझे तो फ्रिक्शन जितना में लगेगा उतना का देखना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन मेरे यहां से लेके यहां तक, ये हैंगिंग पार्ट तो फ्रिक्शन में नहीं है ना, कि मैं टोटल मैं l/3 से ले सकता था, लेकिन यहां से लेके यहां तक क्या फ्रिक्शन में आता है? नो सर, हवा में फ्रिक्शन तो नहीं है। हवा वाला में फ्रिक्शन नहीं है, तो मेरा लेंथ, प्योर लेंथ तो इतना है ना, तो ये प्योर लेंथ कितना है 0 से लेके 2l/3, तो मैं यहाँ पे लिमिट जो लेंगे 0 से लेके 2l/3, बस इतना सा चेंजेस होगा। तो यहाँ पे एक म्यू आएगा, बाकी एज इट इज यहाँ पे 0 to 2l/3, यहाँ पे एक म्यू आएगा, यहाँ पे 2l/3 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? mu mg/2l, if I am not wrong, 4l²/9, तो ये गया 2, that is 2/9 mu mgl। ओके, यस सर। सो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं